Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is electric field intensity. Notation is E bar. It is the topic from the subject EFT, electromagnetic field theory or electromagnetics. Before discussing this, we will first prove the Coulomb's law क्योंकि electric field intensity का derivation, this derivation is based on the Coulomb's law. Exam point of view से Coulomb's law से related क्या question expect कर सकते हो आप लोग? State the Coulomb's law and derive its expression in the vector form. So let us first discuss the Coulomb's law. हम लोग दो point charges consider कर रहे हैं. Example of a point charge is electron. We know the basic rule. If there are 2 point charges and they are having same polarity, there will be force of repulsion. If the polarity is different, there will be force of attraction and so on. So Q1, Q2 are 2 point charges. Distance between them is R. अब देखो, whenever you will use vector notation, so notation will be R bar. I will explain it later. Presently remember it like this: Q1, Q2 are 2 point charges. Distance, they are separated by the distance R. Now statement is electric force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. इसका क्या मतलब है? सपोज ये आर बार के बदले में सिंपली आर पहले कंसीडर करते हैं. सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 इंटू Q2. स्टेटमेंट देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब Q1 इंटू Q2. And this electric force is inversely proportional to square of distance. तो ये ऐसे लिखता हूं मैं, is proportional to 1 by r square. ये दो इक्वेशंस अगर हम कंबाइन करेंगे so it will become F is proportional to Q1 Q2 upon r square. अब देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करेंगे. सो नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज F is equals to K. K is proportionality constant. Q1 Q2 upon R square. K is proportionality constant. In this case, the proportionality constant is given as K is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is called permittivity of free space. अगर सिर्फ नोटेशन इप्सिलॉन है तो इट इज परमिटिविटी, जनरलाइज्ड परमिटिविटी विच इज इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर. इप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी. इस केस में इप्सिलॉन जीरो लिखा है, इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड डू रिमेंबर दिस वैल्यू, इप्सिलॉन जीरो इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12. So let us put the value of K in the equation of F. So force can be written as F is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square. This is the equation of force. लेकिन ये स्केलर है. अब याद कैसे रखना है? कोई भी नोटेशन, अगर जैसे यहाँ पे फोर्स का नोटेशन F यूज किया, ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मुझे F बार लिखना पड़ेगा और इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा. जनरलाइज्ड नोटेशन देखो, इस सब्जेक्ट में बहुत सारे नोटेशन है. यू नीड टू रिमेंबर सम क्लूज. जनरलाइज्ड नोटेशन किसी भी डायरेक्शंस का A बार होता है. So this is the generalized direction. डायग्राम देखो, Q1 से Q2 तक हमने फोर्स दिखाया है. दिस इज क्लियर कट एजम्पशन. अब देखो, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स इज गिवन बाय Q1 ऑन Q2. बेसिक नोटेशन है फोर्स का F. इट इज बाय 1 ऑन 2. सो एट द सफिक्स आई हैव रिटन F12. 1 2 indicates force is given by Q1 on Q2, so notation is F12, and force is vector quantity, so it is F12 bar. Same way ये distance R से denote किया है, you can well write it as R12, but you can keep it at R as it is. Okay, so this is the notation of force. So here I will make the changes. I will write it as F12 bar is equals to Q1 Q2, ये सिर्फ F का स्केलर का इक्वेशन है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. अब नोटेशन तैयार कैसे करने हैं? इसको मुझे डायरेक्शन भी देना है क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर यूज किया. वेक्टर मतलब इट शुड हैव डायरेक्शन. तो डायरेक्शन कैसे देना है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉर्मल नोटेशन डायरेक्शन का A बार होता है और डिस्टेंस का नोटेशन R है, तो आई विल राइट दिस नोटेशन एज AR बार. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ Coulomb's law in the vector form. अब इसका डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं.
बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन लेट मी एक्सप्लेन सम बेसिक थिंग्स. जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2 is denoted by R. We have drawn one line joining Q1 and Q2. This line is having an arrow. Whenever there is an arrow, it is a vector quantity. So this vector is denoted by R bar. अब देखो याद कैसे रखना है, कोई भी वेक्टर जैसे आर बार वेक्टर है. व्हाट इज आर बार? आर बार इज अ वेक्टर और अ लाइन ज्वाइनिंग Q1 and Q2 फ्रॉम Q1 टुवर्ड्स Q2. तो आर बार इज द वेक्टर whose magnitude is denoted by R. ऐसे याद रखना है. If you remove this bar, whatever remaining notation is there, it represents magnitude. हर एक वेक्टर में दो पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड के लिए जो वेक्टर का नोटेशन है, यहाँ पे आर बार है, आई विल जस्ट रिमूव द बार, रिमेनिंग थिंग इज द मैग्नीट्यूड. इसका डायरेक्शन हमेशा ए बार लिखना और बेस में जो डिस्टेंस का नोटेशन है, डिस्टेंस का आर है, सो बेस में यहाँ पे मैं आर लिखता हूँ. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आर बार. अब सपोज किसी डेरिवेशन में, किसी न्यूमेरिकल में हम लोगों को डायरेक्शन कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम दिस आई कैन वेल राइट ए आर बार इज इक्वल्स टू आर बार अपॉन आर. So this is the basic thing how to calculate the direction of any vector. अब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं. बिफोर आई फॉरगेट, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द बेसिक वीडियोज जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कवर किया और वेक्टर्स कवर किया है. इफ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज, प्लीज वॉच दोज वीडियोज, क्योंकि उसमें पूरे बेसिक थिंग्स कवर किए और पूरे सिलेबस में वो लगने वाले हैं. सो आई एम यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट अस अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स. जैसे Q1 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं अज्यूम करता हूँ x1, y1, z1. Q2 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है लेट अस से x2, y2 एंड z2. अब कैलकुलेशन कैसे करना है, ये फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का. दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी गॉट इट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ. इसमें Q1, Q2 और 2 पॉइंट चार्जेस 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है. R का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें और AR बार कैलकुलेट करना है. अब R bar पहले कैलकुलेट करते हैं. What is R bar? Just now I have explained. R bar is a vector joining Q1 and Q2. अब और एक बेसिक चीज याद रखना है, कोई भी वेक्टर कैलकुलेट करना है, वेक्टर का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो ऐसे याद रखना है, एंडिंग कोऑर्डिनेट्स माइनस स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स. एरो देख लो, एरो Q1 से Q2 तक है, मतलब Q1 स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है, Q2 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स है. मैंने कैसे बताया, वेक्टर का इक्वेशन मतलब एंडिंग कोऑर्डिनेट्स माइनस स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स. एंडिंग कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1. अब हर एक कोऑर्डिनेट अलग अलग कंसीडर करना है, मतलब एंडिंग ये हो गया Q2 के, तो आई विल राइट दिस इक्वेशन एज x2 माइनस x1. इसको ब्रैकेट एक बनाया क्योंकि सिर्फ x कोऑर्डिनेट पहले मैं कंसीडर करता हूं. इसका डायरेक्शन, इससे पहले की वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट क्लियर किया है. तीन डायरेक्शंस होते हैं अपने पास, तीन एक्सिस है x, y, z इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. रिलेटेड डायरेक्शंस आर ax बार, ay बार, az बार. अब सिंपल चीजें याद रखना है, x से रिलेटेड है तो डायरेक्शन इसका ax बार लिखना है, प्लस सेकंड थिंग y का कोऑर्डिनेट सेम लॉजिक, ending minus starting, so I will write it as y2 minus y1 direction ay bar plus remaining z coordinate z2 minus z1, z2 minus z1 az bar. This is the equation of vector r bar. अब इससे r कैलकुलेट करना है. What is r? जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, r बार वेक्टर है तो r इंडिकेट्स इट्स मैग्नीट्यूड. आप लोग बार रिमूव करोगे वो नोटेशन के ऊपर का, तो व्हाटएवर रिमेनिंग थिंग इज देयर इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रख लो. देखो हर एक टर्म में कुछ क्वांटिटी है, दैट इज कुछ मैग्नीट्यूड है, मतलब x2 माइनस x1 इज द क्वांटिटी एंड ax बार इज द डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ क्वांटिटी लेना है, मतलब आई विल राइट इट लाइक x2 माइनस x1 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर करना, टेक द स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट. फिर नेक्स्ट टर्म y2 माइनस y1, ये मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का, प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये आ गया इक्वेशन r का. r रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड. अब AR bar, look at the basic formula. AR bar is R bar upon R. R bar मतलब ये पूरा इक्वेशन, so I will write it like this, x2 minus x1 ax bar plus y2 minus y1 ay bar plus z2 minus z1
ए जेड बार, ये Z2 है, ये हो गया आर बार. व्हाट इज द फॉर्मूला? ए आर बार इज आर बार अपॉन आर. तो ये आर बार का इक्वेशन लिखा मैंने डिवाइडेड बाय आर. आर मतलब ये पूरा टर्म, इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये हो गया ए आर बार का इक्वेशन. अब remaining part is simple. You just have to put these values in the equation of F12 bar. अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. सो नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहां पे लिखता हूं मैं F12 बार इज इक्वल्स टू Q1 Q2 एज इट इज रहेगा. Q1 Q2 न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आर का इक्वेशन है, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा. तो ये मैं ऐसे लिखता हूं x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. लेट मी रब आउट दिस थिंग्स. सो इट इज y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 ब्रैकेट स्क्वायर. व्हाट आई डिड, यहाँ पे R स्क्वायर है तो R का ये इक्वेशन है, ये स्क्वायर रूट था तो R स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा. रिमेनिंग थिंग्स आई हैव रिटन इट एज इट इज. सो इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. अब ए आर बार का इक्वेशन मतलब ए इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे पुट करना है. सो दिस बिकम्स x2 माइनस x1 ax बार. एक मिनट मुझे थोड़ा ये रब आउट करने दो. अब ये इक्वेशन जो है ये एज इट इज ए आर बार का यहाँ पे पुट करना है. द इक्वेशन इज लेंदी बट इट्स नॉट एट ऑल टफ. तो यहाँ पे लिखता हूं मैं इनटू, मतलब ये लाइन यहाँ तक है, इनटू x2 माइनस x1 ax बार प्लस y2 माइनस y1 ay बार प्लस Z2 minus Z1 AZ bar. I am writing this equation divided by square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square plus Z2 minus Z1 bracket square. What I did, I have simply put the values of R square and AR bar in the equation of F12 bar. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं. देखो आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है. Look at these denominator terms. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म्स. ये जो टर्म है दिस ब्रैकेट रेस टू 1 है एक्चुअली, और ये स्क्वायर रूट है. मतलब एज इफ यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट मार्क करता हूँ स्क्वायर रूट के बदले में तो ये आएगा ब्रैकेट रेस टू 1/2. तो ये सेम इक्वेशन है, एक में ब्रैकेट रेस टू 1 है, सेकंड में ब्रैकेट रेस टू 1/2. सो इट बिकम्स, इफ यू क्लब अप दिस टू ब्रैकेट्स इट विल बिकम ब्रैकेट रेस टू 3/2. सो आई विल जस्ट रिमूव दिस पार्ट क्योंकि ये दो क्वांटिटीज मैंने कंबाइन किया. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. And we have calculated the force F12 bar, that means force created by Q1 on Q2. अब ये F12 bar का है. Suppose I want F21 bar. What does this mean? F21 मतलब force by 2 on 1. देखो ये अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो आप तो ये अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. Once you calculate F12 bar, F21 bar is minus of negative of F12 bar. So this is the derivation of Coulomb's law. Next, the important part is electric field intensity E bar. अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे एक चार्ज दिखाया है. बेसिकली चार्ज कंटेन्स एनर्जी एंड एनर्जी इज रेडिएटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. अब देखो एक एनालॉजी कंसिडर कर लो. सपोज समवेयर देयर इज अ हॉट बॉडी. इफ यू आर नॉट इवन टचिंग टू द हॉट बॉडी, मतलब एक हॉट बॉडी है, आप सिर्फ पास में खड़े हो, यू कैन सेंस द हीट वेव्स विदाउट टचिंग टू द हॉट बॉडी. एक डिस्टेंस तक ये पॉसिबल है, उसके बाद यू वोंट बी एबल टू सेंस द हीट वेव्स. सेम वे यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है एंड एनर्जी इज रेडिएटेड आइडियली
इक्वल डायरेक्शंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, तो उस केस में ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया, डॉटेड सर्कल, आई एम एज्यूमिंग दैट कि ये रीजन है, यहां तक ये एनर्जी हम लोग सेंस कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रीजन वेयर फोर्सेस एक्ट. मतलब एक रीजन है, एक रेंज है जहां तक फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इससे पहले मैंने दो चार्जेस बनाए थे Q1 एंड Q2. अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू क्रिएट द फोर्स बाय Q1 ऑन Q2. तो एक रेंज है, एक रीजन है जहां इन दैट रीजन द फोर्सेस कैन एक्ट is called electric field intensity. This is the definition of electric field intensity. Mathematically, electric field intensity is defined as force per unit charge. Force per unit charge. अब बिफोर आई फॉरगेट, या इस सब्जेक्ट में बहुत सारे नोटेशंस है, नोटेशंस भी आप लोगों को मगअप नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, लॉजिकली याद रखना है. वी नो नोटेशन ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स, नोटेशन ऑफ चार्ज इज कूलम्स. तो ई बार का नोटेशन आएगा, ई बार का यूनिट आएगा, नॉट नोटेशन, यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, और देयर इज वन मोर यूनिट वोल्ट्स पर मीटर. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. प्रेजेंटली इट इज फोर्स अपॉन चार्ज, सो यूनिट ऑफ ई बार इज न्यूटन पर कूलम. अब डेरिवेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेम. हमने अभी अभी इलेक्ट्रिक फोर्स का डेरिवेशन किया है, मैंने सेपरेटली लिखा है. दिस इज द फोर्स क्रिएटेड बाय 1 ऑन 2. अब फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इट इज फोर्स अपॉन चार्ज. सपोज हम लोगों को ई बार कैलकुलेट करना है एट पॉइंट चार्ज Q2, तो इसको डिनोट मैं करूंगा E2 बार से. Look at the formula, it is force upon charge. So force we have just now calculated, it is F12 bar upon charge. कहां पे कैलकुलेट करना है? Q2 पे. मतलब ये डेरिवेशन यहां तक सेम आएगा अपॉन Q2, मतलब सिर्फ ये Q2 कैंसिल करेंगे क्योंकि अपॉन Q2 है, तो Q2 गेट्स कैंसल, एंड दिस इज द इक्वेशन डेरिवेशन ऑफ E बार. बहुत सिंपल है. आप लोग स्टार्टिंग से ही, जैसे इस डेरिवेशन में Q1 Q2 स्टार्टिंग में ही लिया था हमने, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्टिंग में सिर्फ Q1 लेना है, रिमेनिंग ऑल द थिंग्स आर सेम. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Now let us solve one numerical to get an idea. देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा. यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल हमने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखा था फोर्स का, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर AR बार. व्हाट आई सेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है? Q1 Q2 में से एक चार्ज रिमूव करना है. सो आई हैव रिटन ओनली Q. इट कैन बी Q1 और इट कैन बी Q2. दो चार्जेस है न्यूमरेटर में, उसमें से एक डिलीट करना है बिकॉज E बार इज फोर्स अपॉन चार्ज. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर AR बार. ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला, हमेशा जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज करना है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मार्क कैसे करना है. एज एन एग्जांपल, सपोज अपने पास पॉइंट है P 1, -1, 2. ये इसके कोऑर्डिनेट्स है. बाय डिफॉल्ट गिवन कोऑर्डिनेट्स विल बी x, y, z. ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, इन जनरल मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं. वी नो दैट देयर आर 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. अब यहां पे x कोऑर्डिनेट देखना है. x कोऑर्डिनेट 1 है, बाय डिफॉल्ट ये ओरिजिन होगा. x कोऑर्डिनेट 1 है, x एक्सिस इज दिस एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट +1 है, तो यहां पे मैं 1 मार्क करता हूं. लुक एट y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज -1, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, माइनस मतलब इस साइड आएगा. सो अगर हम लोग इस साइड में ड्रॉ करेंगे तो समवेयर आई विल गेट -1 ऑन y एक्सिस. सिर्फ मैंने x और y कोऑर्डिनेट मार्क किया है. अब इसका इंटरसेक्शन लेना है. देखो ये x1 है, ये y -1 है. x1 पॉजिटिव x एक्सिस पे, y -1 है इसलिए निगेटिव y एक्सिस पे. ये 0 से आगे पॉजिटिव y एक्सिस है. अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन कैसे लेना है? इंटरसेक्शन के लिए जो x कोऑर्डिनेट है उससे y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. y एक्सिस ऐसा है तो x कोऑर्डिनेट से y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. y कोऑर्डिनेट ये है -1, उससे x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. x एक्सिस ऐसा है
तो यहाँ से मैं ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो y कोऑर्डिनेट से x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ, सॉरी x कोऑर्डिनेट से y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, y कोऑर्डिनेट से x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z इज +2, ये z एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव साइन है, z इज +2। सपोज यहाँ पे समवेयर आई एम गेटिंग z इज इक्वल टू +2। हमेशा जो z का वैल्यू है वहां पे z एक्सिस को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है इन एवरी डायग्राम। z का जो कोऑर्डिनेट है वहां से z एक्सिस को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। z एक्सिस वर्टिकल है, परपेंडिकुलर विल बी हॉरिजॉन्टल। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था ये वाला, ये दो पॉइंट्स नहीं, जो इंटरसेक्शन होने के बाद जो पॉइंट आया है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। ये पॉइंट इस एक्सिस को, मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है यहां तक एक्सटेंड करना है, मतलब यहां तक ये लाइन ऐसे खींचना है। सो दिस इज द पॉइंट P whose coordinates are 1, -1 and 2. So do remember this basic process, how to mark a point, any point in the coordinate system. Now let us solve this numerical. The given question is find E bar at 0, 3, 4. मतलब हमें E bar calculate करना है at the point 0, 3, 4. First let us draw the diagram. ये x axis है, this is y axis, this is z axis. कोऑर्डिनेट्स आर x 0 है, यहाँ पे ओरिजिन है, x 0 है मतलब ये सेम पॉइंट आ गया। y +3 है, y +3 है मतलब ये y +3 यहाँ पे आ गया। अब रूल क्या है? x और y का इंटरसेक्शन लेना है। देखो लास्ट मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, उसमें x जो कोऑर्डिनेट था उससे y एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाया, y से x एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाई, लेकिन यहाँ पे x 0 है और y 3 है। रूल क्या है? y से x एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाओ और x से y को पैरेलल लाइन बनाओ। इसका मतलब इंटरसेक्शन यहीं पे आएगा, y इज इक्वल टू 3 पे ही आएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। अब z का वैल्यू देखो, z इज इक्वल टू +4। सपोज यहाँ पे समवेयर आई हैव z इज इक्वल टू +4। हमेशा जो z का वैल्यू है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ये वाला लाइन, और ये जो इंटरसेक्शन है x और y कोऑर्डिनेट का वो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये पॉइंट इस z के लेवल तक एक्सटेंड करना है। सो दिस इज पॉइंट चार्ज q whose value is given as 0.5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे ओरिजिन है। व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? फाइंड E bar at point q point 0, 3, 4 ड्यू टू, हाँ सॉरी ये Q यहाँ पे नहीं है, ये पॉइंट P है। सपोज दिस इज पॉइंट P, ये मैंने लोकेट किया पॉइंट P। यहाँ पे हमें E bar कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q 0.5 माइक्रोसेकंड, मतलब ये यहाँ पे Q है, Q इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम नॉट सेकंड्स, माइक्रोकूलम प्लेस्ड लोकेटेड एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे 0.5 माइक्रोकूलम है। इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैलकुलेट करना है। अब बेसिक मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, हमेशा ये याद रखना है कौन से पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करना है। वी हैव टू डू द कैलकुलेशन एट पॉइंट P। तो ड्रॉ द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज Q टुवर्ड्स पॉइंट P। जहां पे कैलकुलेशन करना है वेक्टर शुड बी टुवर्ड्स दैट पॉइंट। So this is the vector I will denote it by R bar, मतलब this is the line joining origin and point P। हमें point P पे कैलकुलेट करना है because find E bar at point P, तो इसलिए arrow is at P। ये अगर arrow चेंज करोगे तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। Alright, so this is point P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख के रखता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। कोऑर्डिनेट्स आर 0, 3, 4। अब लुक एट द फॉर्मूला। यहाँ पे Q है, Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4πε0 r² AR bar। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर R bar। सेम लॉजिक, XYZ कोऑर्डिनेट से, ये ओरिजिन है मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 हो गए। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड इन डेरिवेशन, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x रहता है, दूसरा y रहता है, तीसरा z रहता है। सो दिस माइनस दिस, एंडिंग माइनस स्टार्टिंग। एरो देखना है, एरो जिस पॉइंट पे वो एंडिंग कोऑर्डिनेट है, तो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स आर 0, 3, 4, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0, 0। तो 0 - 0, पहला कोऑर्डिनेट 0 आ गया, सो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग। सेकंड 3 - 0, तो ये आ गया 3, इसका डायरेक्शन a y बार क्योंकि 3a y कोऑर्डिनेट है। फिर प्लस नेक्स्ट देखो 4 - 0 करना है, ये z कोऑर्डिनेट है, सो 4 - 0 इज 4az बार।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ आर बार, वेक्टर आर बार. अब इसका मैग्नीट्यूड आर, ये कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल रूल्स अप्लाई करना है. टेक द स्क्वायर रूट. जो भी आर बार के इक्वेशन में मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर. सो इट बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस 4 square, so it is 9 plus 16, so value of r will be 5. Then we have discussed AR bar. AR bar कैसे लिखते हैं? R bar upon R, मतलब ये आएगा 3AY bar plus 4AZ bar upon R, मतलब 5. अब ये पूरे वैल्यूज हम पहले से कैलकुलेट करके रखना है. देन पुट इट इन द इक्वेशन ऑफ E bar. अब देखो इक्वेशन ऑफ ई बार क्या है अपने पास? ई बार इज, दिस इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग. क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू इज 0.5 माइक्रोकूलम, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकूलम है इसको कूलम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12. आप कैल्शियम के कॉन्स्टेंट्स भी यूज कर सकते हो, नॉट नेसेसरी टू मग अप दिस वैल्यू. सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. देखो आर का वैल्यू है 5, तो इंटू मैं लिखता हूं 5 स्क्वायर इंटू ए आर बार. अब ए आर बार का इक्वेशन, ए आर बार का वैल्यू यहां पे पुट करना है इंटू ए आर बार. ए आर बार का इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिखा है. सो इट इज 3AY बार प्लस 4AZ बार डिवाइडेड बाय आर. आर इज 5. अब ये सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफाई मतलब क्या करना है? सिर्फ ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऐसे, इतना पार्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है. सो इक्वेशन ऑफ ई बार आई विल राइट इट ओवर हियर. आफ्टर सॉल्विंग इट ऑन द कैलकुलेटर you will get it 35.97 in the bracket 3AY bar plus 4AZ bar. लास्ट स्टेप, ये 35.97 जो वैल्यू है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो. सो फाइनल आंसर इज ई बार इज इक्वल्स टू 107.9 AY बार प्लस 143.8 AZ बार. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ई बार. इसका यूनिट्स लिखना है न्यूटन्स पर कूलम, और यू कैन वेल राइट वोल्ट पर मीटर. सो दिस इज द वे how to solve the numericals as far as the calculations of electric field intensity is concerned. So dear students, that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.